Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे जय श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण आत्माराम हरे कृष्ण सतीश हरे कृष्ण प्रभु जी। कुंदन धनंजय रोहित सोनू पीयूष हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कहीं पे गाना चल रहा है, आपके यहाँ शायद चल रहा है प्रभु जी। बैकग्राउंड में चल रहा है कुछ माइक। अच्छा ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
So, we're reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, contents of the Gita summarized, text number 57. Dhananjay, read. Somebody can share the screen. Actually, there's no problem. There is many. Internet problem. Okay, ठीक. You read, हाँ? लिंक है क्या प्रभु जी? लिंक भेज दो चैट विंडो में. And now it is coming, guys. लिंक भेज सकते हो चैट विंडो में so that प्रभु जी can see also. Atmaram Prabhu and others. Hare Krishna Arvind Prabhu. Hare कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण सर, लिंक भेजा है सर. हाँ ठीक. Atmaram Prabhu, link is in the chat window, so chat window. धनंजय you read, हाँ? सब लोगों के लिए लिंक भेज दिया गया है. लिंक देखिए, आज इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद यहाँ पे. टेक्स्ट नंबर कितना था प्रभु जी? 57. धनंजय you read. यः सर्वत्रानवि स्नेहः तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम्. न विनन्दति न वेष्टि. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Purpose by his different days, Vedanta Jai. in the material world, one who is unaffected by whatever good he may obtain, neither praising it nor despising each family thinks in perfect knowledge. Purpose, there is always some up in the material world, be good or evil. One who is not aided by such material upheaval, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always pursuit of good and evil, because this world is for dwelling. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil, because it simply concerned with Krishna, who is all good absolute. Such consciousness in Krishna situates one in a perfect transcendental position called technically Samadhi. Hare Krishna, sir. हरे कृष्णा. थैंक यू. सो अर्जुन जब पूछे कृष्ण भगवान को कि वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ हैं उनके बारे में थोड़ा हमको बताइए.
वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, उनके एक्टिविटी, उनका कैरेक्टरिस्टिक। तो अर्जुन तो फिर कृष्ण उनको एक्सप्लेन करने लगे। हम लोग देखे 2.55 से द्वितीय अध्याय के 55 नंबर 54 नंबर श्लोक से 55 नंबर से श्लोक से कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं ये व्यक्ति कैसे होते हैं जो स्थित प्रज्ञ होते हैं। कल भी हम लोग पढ़े कि कैसे वो व्यक्ति होते हैं, उसको इलाबोरेट कर रहे हैं कृष्णा। थोड़ा इलाबोरेटली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति है जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, उसका माइंड कितना भी उसको दुख आए। 3-fold मिजरी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कल। 3 प्रकार के जो दुख आता है हमको, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, उसमें भी वो डिस्टर्ब नहीं होता है कभी, और उसका माइंड कभी एजिटेट नहीं होता है। ही ऑलवेज रिमेन्स इन हैप्पीली he remains always in his life, and he is free from attachment, fear and anger. वीतराग भय क्रोध लोग कल पढ़े थे। एंड वो ऐसे रहता है जैसे एक ऋषि रहते हैं, वैसे ही वो रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ही इज ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने से जिसको समझ में आ गया पूरा कृष्ण कौन है, वो कौन है, सारे जीव कौन है, प्रकृति कैसे काम कर रही है, देन ही विल रिमेन ऑलवेज स्टेडी। क्योंकि वो जानता है क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हुआ, उसको दुख क्यों आया, उसको सफरिंग क्यों आया, तो उसमें वो विचलित नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। आज भी कृष्णा उसको और इलाबोरेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो मेटेरियल प्लेटफॉर्म है, ये दिस इज फुल ऑफ डुअलिटी। इसमें कोई भी फ्री नहीं हो सकता है डुअलिटी से। मेटेरियल प्लेटफॉर्म मीन्स मेटेरियल हैप्पीनेस आएगा, मेटेरियल सफरिंग भी आएगा। जो इसको ट्रांसेंडेंस कर गए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें बोल रहे हैं कि one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, it is firmly fixed in perfect knowledge। जो परफेक्ट नॉलेज में स्थित है, तो उनके लिए जो आता है रिजल्ट, कभी दुख लेकर आता है, कभी सुख लेकर आता है। सुख आए तो कभी उछलना नहीं है, दुख आए तो ज्यादा दुख में पूरा एकदम दूसरों को दोषी ठहरा कर बड़ा परेशान नहीं होना है। हमेशा स्टेडी रहते हैं क्योंकि उनको परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, there is always some of evil in the material world which may be good or evil। सुख दुख, डार्कनेस लाइट, दिन रात, ये मेटेरियल नेचर का, ये जो भौतिक प्रकृति है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग यहाँ जो भौतिक प्लेटफॉर्म पर हैं अभी, तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, इससे हम लोग दूर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इससे अगर ऊपर जाएंगे ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे, तो इससे मुक्त हो सकते हैं। जब तक इसी में है तो ये चलता रहेगा, सुख दुख, दिन रात, ठंडा गरम, बारिश बिना बारिश, ये सब चलता रहेगा। तो इसलिए इसमें हम लोग पहले ही पढ़े थे, कृष्णा जब बता रहे थे अर्जुन को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो उसमें ही वही बता रहे थे कृष्ण कि जो व्यक्ति बड़े बुद्धिमान होते हैं वो इसमें कभी अधीर नहीं होते हैं, वो धीर रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होता है तब भी, एजिटेट नहीं होता है। One who is not agitated by such material of evils, he is unaffected by good and evil।
is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. जब तक हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्थिर नहीं कर पाएंगे, तब तक हमको बहुत सारे कभी हमारे महाराज लोग बताते हैं, क्योंकि ये जो भव है, ये जो भव संसार है, इसको सागर के जैसे तुलना किया गया, भव सागर। और सागर के अंदर हम लोग अगर हैं, तो कभी उधर से एक वेव आएगा, हमको ऐसे धकेल देगा, उधर से कभी वेव आएगा, धकेलेगा, कभी पीछे से मारेगा, कभी ऊपर से। उसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े व्हेल, बहुत सारे भयंकर जीव हैं जिनके साथ हम लोग रह रहे हैं। तो इसलिए तो ये जो भव सागर है, इसमें हम लोग सोचेंगे कि शांति में रहेंगे आराम से, मुश्किल है। कोशिश करके भी हम लोग नहीं रह सकते। हाँ, हम लोग कई बार मैं स्टोरी बताया भी था, क्योंकि ये संसार जो है ऐसे ही है, इसमें हम लोग चाह कर भी खुशी नहीं रख सकते, लेकिन हम लोग बाहर को दिखाते हैं कि हम बड़े खुश हैं। 25 सर्कस का एक स्टोरी हमने बताया था पहले हमारे बच्चों को। तो ये 25 पैसा सर्कस में ऐसे ही होता है ना, सब लोगों को पिटाई पड़ता है इस संसार में, लेकिन कोई मान लेता है हाँ मुझे पिटाई हुआ है, कोई नहीं मानता है। मानता है कि पिटाई जो है ये बढ़िया लगा, खुशी होता है। हाँ, तो जो कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं उनको लेकिन बड़ा कम हो जाता है, ये जो दुख है बड़ा कम हो जाता है। वो धीरे धीरे फिर ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में ये सब उनको कुछ भी नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल दिए थे प्रभुपाद, उस समय भी हम लोग पढ़े थे, जो भागवतम से 10th कैंटो में, ये ब्रह्मा जी के प्रेयर से लिया गया था। ब्रह्मा जी प्रे कर रहे थे कृष्ण को, जब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जब चुरा कर ले लेते हैं बाल ग्वाले और बछड़ा को, फिर वापस आके देखते हैं सब लोग तो हैं, लेकिन उनको समझ में फिर आ जाती है कृष्णा जो है इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। देन वो उन्होंने स्तुति करने लगते हैं कृष्ण की। उस स्तुति में वो बताते हैं आपके जो भक्त लोग हैं, आपके भक्त लोग आपको इतना प्यारे हैं, और उनके लिए भव संसार कुछ भी नहीं है। हाँ, उनके लिए भव संसार जो है कैसे है, यद्यपि भव संसार भव सागर जो है हर स्टेप में डेंजरस पोजीशन क्रिएट करता है, लेकिन आपके भक्तों के लिए कुछ नहीं। ये कैसे, एक बछड़ा के जो निशानी होता है, उसका पैर का निशानी, उसमें जितना पानी रहता है वैसे ही होता है, उसको ऐसे जंप करके पार करना। एक सागर है और एक बछड़ा का जो पांव का निशान है, उसमें जितना पानी रहता है वो सागर इतना हो जाता है भक्त लोगों के लिए। तो इसलिए उनके लिए कुछ नहीं। As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil, because this world is full of duality. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil, because he is simply concerned with Krishna, who is all good absolute. Such consciousness in Krishna situates one in a perfect transcendental position. टेक्निकली इट इज नोन एज समाधि। ये समाधि होता है जब भक्त लोग कृष्ण सेवा में लगते हैं, हमेशा उनके कॉन्शियसनेस में कृष्ण ही रहते हैं। हम लोग देखें ब्रज लीला में और कई लीला में, गौर लीला में, जब भक्त इवन अपने फैमिली, अपने स्वजन, अपने शरीर को भी भुला देते हैं लोग। इवन ब्रज लीला में हम लोग देखे हैं कि जो ब्रजवासी थे, जितने भी गौए थे, इतने प्रेम करते थे कृष्ण से।
इतना प्रेम, और उनका पूरा लाइफ कृष्णा के लिए ही न्यौछावर था। हाँ, वो लोग जो भी करते थे कृष्णा के लिए ही करते थे। तो इसलिए उन लोगों का जो कॉन्शियसनेस है, इट वाज स्टेडी इन कृष्णा, स्टेडी इन कृष्णा। इवन हम लोग देखें ब्रजलीला में कितना दुख आया है कि कभी राक्षस लोग आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं, कभी इंद्रदेव आके खूब बारिश कराए, कुछ भी उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। हाँ। सारे भक्तों के केस में हम लोग देख, इवन प्रहलाद महाराज की लाइफ में, हर जगह पे हम लोग देखे हैं भक्त लोगों को कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होती, जो लोग स्थित प्रज्ञा होते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में फिक्स रहते हैं। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड रहने के लिए हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग सोचेंगे हम लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े भक्त बन गए, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग बद्ध जीव है, कंडीशनड है, बहुत ही लाइफ जन्म जन्मांतर में हम लोग बंधे हुए हैं, और वो रस्सी जो है धीरे धीरे इतना मोटा हो गया, उसको काटने के लिए हमको कई साल लगेगा, कई युग भी लग सकता है, क्योंकि वो रस्सी जो बंधा हुआ है 3 गुणों में, 3 गुणों का रस्सी, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इतने इतने मोटे मोटे रस्सी है जिसमें हम लोग बंधे गए हैं, और वो रस्सी को काटने के लिए हमको तो प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ होगा नहीं। हमेशा हम लोग देखे हैं, क्योंकि प्रकृति का ऐसे नेचर है, हम लोग कोई भी चीज जो सोचते हैं ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक बहुत चीज होता है जिसमें हम लोग और डिस्टरबेंस होता है, इसलिए हम लोग प्रयास करना पड़ेगा, जिस प्रयास में हम लोग वो बड़े बड़े रस्सी जो हम जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं, उसको, उससे हम लोग मुक्त हो पाएंगे। तो रस्सी को मुक्त करने के लिए हम लोगों को, जो लोग मुक्त हैं उन लोगों के सहारा लेना पड़ेगा, जैसे हमारे आचार्य लोग, प्रभुपाद, भक्त लोग हैं, साधुजन हैं, प्रभुपाद हैं, उनके सहारा लेके हम लोगों को उससे मुक्त होना पड़ेगा। तो उन लोगों ने जो बताया गया, बताए गए माध्यम से, और जो भी पथ दिए हैं, उसमें हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर भक्ति का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग उससे मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अभ्यास करना पड़ेगा डेली, प्रैक्टिस मीन्स चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद बोले थे, मैं बताया भी था पहले, प्रभुपाद का ये गाइडलाइन था कि सारे भक्तों के लिए जो भी ये फॉलो किया वो अपना लाइफ को सुधार दिया। 16 राउंड चैंटिंग, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। क्या क्या है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? कुंदन बताओ, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या क्या है? हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर, नो intoxicant, no gambling, no illicit sex, and sir, एक और था सर, There is no meat eating. no meat eating. अरे इम्पोर्टेंट चीज तुम भूल जा रहे हैं। नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग eggs, fish, everything. No non-vegetarian, those are ignorant foods. No intoxication including these tobacco, bidi, cigarette, tea, coffee, everything. Those are intoxicant in which the intoxication is there, we should leave it, because by which we actually hamper our austere life. तपस्या नष्ट हो जाता है उस। Then no gambling, which actually takes from us the truthfulness. No gambling, किसी भी चीज में हम लोग गैम्बल नहीं करना चाहिए। इवन
मेंटल स्पेकुलेशन भी कोई चीज में नहीं करनी चाहिए। और क्या है? नो इलिसिट सेक्स। This is very, very dangerous platform because everywhere we are seeing all corners of this world is full of illicit sex. Everywhere, wherever we go, in the cinemas, films, movies, media, if you open our phone also, it is full of illicit sex. Avoid sampark, and easily we fall prey to this. So therefore, this hampers our consciousness, inner consciousness. It pollutes our inner consciousness. And these four principles, we should stick to these four principles and chant Hare Krishna Mahamantra regularly, 16 rounds. And this can happen only when we engage in devotional service with the devotees. Those are practicing it. So this is very, very important. Now we have to serve the devotees. And by the blessings of the devotees, जब भक्त लोगों का कृपा प्राप्ति होगा तो हम लोगों को automatically we can lead, we can able to also follow these four regulative principles perfectly. तो अभी महाराज आएंगे next week में. We should take his association as much as possible and उनकी सेवा में हम लोगों को रहना चाहिए. जितना हम लोगों को बड़े बड़े भक्त लोगों का सेवा करेंगे उतना हम लोगों को भक्ति के रास्ते पर प्रोग्रेस होगा. बिना सेवा के, बिना भक्ति के अभ्यास से हम लोग नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है. इसलिए प्रभुपाद के दिया हुआ रास्ता कोई भी फॉलो किया ये वर्ल्ड में, इसलिए हम लोग देख रहे हैं बहुत भक्त बन गए, बहुत, because they are following whatever Prabhupada instructed. इतने लोगों को प्रभुपाद बना दिए भक्त, लाखों लोगों को. सब लोग chanting कर रहे हैं 16 round for regulatory principles. They are following everything they are doing. So therefore, when you follow the instruction given by pure devotee, it is easy to progress in the path of devotional service, and we will gradually achieve this position of samadhi, what is Krishna is telling here. Hare Krishna. Thank you very much. Let's stop here. Hare Krishna. Atmaram Prabhu. Please. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Dandavad pranam. प्रभु जी, आज चर्चा हुआ कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड में जो हमेशा कुछ अच्छा कुछ बुरा ये होते ही रहता है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड है. काम करेंगे या कुछ अच्छा होगा कुछ खराब होगा. प्रकृति का नेचर भी है, डुअलिटी, दिन है तो रात भी है. तो इस तरह से हमेशा ही कुछ न कुछ होते रहता है. तो जो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, पिछले कई श्लोकों में समझाए हैं कि जो स्थिर बुद्धि होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो कर्म के फल की चिंता नहीं करता है, वो कर्म के फल से परे होता है. ये नहीं कि जो कुछ अच्छा हो गया तो बहुत खुश हो गए और जब कुछ खराब हुआ तो बहुत दुखी हो गए, उससे परे होता है. और बहुत बड़े बड़े काम को बहुत स्थिरता और गंभीरता से कर लेता है. जैसे हमने देखा कि प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत ऐसी श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, इतने जो है कि इतना कम रिसोर्स होने के बावजूद पूरे दुनिया में जो इतना बड़ा काम कर दिए हैं, जो हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार प्रसार, और जितने भी हम इस्कॉन टेम्पल्स देख रहे हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, और बहुत ही कम रिसोर्स होने के कारण, बहुत डेडिकेशन होने के कारण स्थिर उनका था कि एक ही लक्ष्य था, एक लक्ष्य को लेकर चले, और जो है कि बहुत कम समय में जो है कि बहुत ज़्यादा
पूरे विश्व में प्रचार कर सके थे। तो कल मैं जो है कि श्री लीला पुरुषोत्तम दास जी का ये देख रहा था, तो उसमें भी देखा कि प्रभु जी जो हैं, जो कि अभी IIT मंडी के डायरेक्टर भी हैं, तो उनका देख रहा था कि कितना बहुत ही गरीबी हालत से जो है कि IIT के डायरेक्टर तक का जो सफर है, वो एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ कल मैं दोबारा देख रहा था। तो उसमें बताए कि जो कितना मेहनत किए वो, मतलब जो है खेत से जो है कि बैल पर ये जो क्रॉप्स होता है उसको भी, जो फसल होता है उसको लेकर आते थे, और जो है कि सुबह 4 बजे उठना, और हमेशा जो है कि बहुत खाली नंगे पैर 10-11 क्लास तक तो नंगे पैर चलते थे। तो ये बहुत ही गरीबी, लालटेन में पढ़ाई करते थे, उस समय इतना बिजली नहीं था। उसके बाद जो है वो फिजिक्स के प्रोफेसर होना चाहते थे, फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, मेनली फिजिक्स में इंटरेस्ट था। तो बाद में पिताजी बोले कि थोड़ा इंजीनियरिंग की तरफ सोचो, तो इंजीनियरिंग के बारे में सोच के जो है NIT राउरकेला में एडमिशन हुआ था उनका। NIT राउरकेला में जो है BTech किए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लगभग टॉपर रहे, और उसके बाद जो है वहाँ पे फिर उनको हुआ कि कृष्ण भक्ति में जुड़े ही हुए थे, तो क्वेश्चन हमेशा उठता था कि मैं कौन हूँ और मेरा लाइफ का क्या मकसद है। तो वहाँ से जो है उन्होंने कुछ एक योगा क्लास चलता था, योगा क्लास को ज्वाइन किए, जो में मतलब एक और चीज बहुत अच्छा बताए जो याद रखने योग्य था कि वो जो हठ योग एक ज्वाइन किए थे, उसमें बता रहे थे कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, सब खा खा कर मरते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि दिन रात सब खाने के पीछे लगे रहते हैं, और जो है बता रहे थे कि 1.5 साल तक वो केवल सलाद खा के रहे हैं, केवल जो है कि फल खाए। तो खाने का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारे मन पे। तो वो जो है केवल सलाद खा के रहे। आज के जो चर्चा भी हुआ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो खाने का बहुत बड़ा महत्व है जो हमारे मन पे डायरेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमें जो भी खाना चाहिए जो है कि भगवान को भोग लगा करके, नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, किसी भी तरीके का नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ऐसा कहा भी जाता है। और तो प्रभु भक्ति में मन लगा रहेगा अगर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो वहाँ पे बहुत ही उनका जर्नी जो हमने देखा, फिर जाके आगे एमटेक कर लिए, एमटेक वहीं से किए, फिर जो है कि PhD किए IIT दिल्ली से। तो काफी प्रचार प्रसार में लगे हुए रहते थे। हॉस्टल में जब जाते थे बच्चों को बताने के लिए, तो बच्चा जो उनके साथी वगैरह थे वो जो है रूम लॉक करके भाग जाता था कि अब आ गया, अब हमको समझाएगा कि ऐसे नॉनवेज मत खाओ। तो इस तरह से जो और भक्ति करो, चैंटिंग करो, तो वो बहुत ही स्ट्रगल करके उनका जो पूरा हमने कल देखा। वो तो एक जो कृष्ण भक्त होता है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमेशा रहता है, स्थिर बुद्धि होकर वो काम करता है। अभी जो हमारे तरफ जो यहाँ पे माइक का आवाज आ रहा था, तो हमारे तरफ क्या है कि एक गुरु महाराज का ये चलता है, बहुत ही अच्छा उसमें बताया जाता है कि जैसे हम लोग 4 चीज बोलते हैं, अभी जो हमने डिस्कस किया उसी को दूसरे रूप में कि जैसे बोलते हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार तजना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार मतलब वही जो दूसरे के बारे में सोचना, या उसको हम इलिसिट सेक्स ले सकते हैं। तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार तजना चाहिए, मतलब इसको छोड़ना चाहिए। तो ये सब चीजें है जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 4
बेसिक प्रिंसिपल है कि नो नॉन वेज ईटिंग, कोई भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह का जो इंटॉक्सिकेशन है, जैसे अल्कोहल हो गया, बीड़ी सिगरेट खैनी तंबाकू गुटखा, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। गैम्बलिंग, कोई भी तरह का जो जुआ होता है जहाँ पे ये है, तो उस तरह से जुआ नहीं खेलना चाहिए। और नो इलिसिट सेक्स। सो ये जो है 4 चीज जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है। इस पे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे कि उतना हमारा मन बुद्धि स्थिर रहेगा। और पहले भी तो ये 4 चीज नहीं करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? तो करने के लिए भी आपने प्रभु जी एक बार डिस्कस किया था कि ABCD प्रिंसिपल है। अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन करना चाहिए, अच्छा किताब पढ़ना चाहिए, बुक, ठीक ना, चैंटिंग करना चाहिए। और D4 क्या था प्रभु जी? डी भूल गया मैं थोड़ा। डाइट। हाँ, डाइट, यस। D4 डाइट। सो जो है कि अच्छा, वो तो हमने डिस्कस किया है कि जो खाना है वो हमारा जो है प्रसाद होना चाहिए। तो वो तभी हम जो है कि हमारा मन और बुद्धि स्थिर रहेगा। और आज का यही चर्चा हुआ कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें जो है कि अच्छा खराब हमेशा होता ही रहता है। और जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है वो ये सबसे परे होता है। कभी गुस्साता नहीं है खराब हो जाने पे, और कभी बहुत जो है कि अच्छा हो गया तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है। तो वो एकदम फिक्स्ड माइंड का होता है। और जिसको कि इसी को हम योगा कहते हैं, इसी को हम समाधि कहते हैं। जो एक्चुअल समाधि है वो यही है कि अपने कर्म को करते हुए स्थिर चित्त बुद्धि होके अपना कर्म करते रहना और अच्छा कर्म करना। हर व्यक्ति को अपने अंदर में जो प्रभु बैठे रहते हैं वो हमेशा बोलते हैं, जो भी कर्म करने जाता है, कि ये अच्छा है ये खराब है। मगर होता क्या है कि जिस चीज का प्रैक्टिस हम ज्यादा करते हैं वो आगे हो जाता है। तो जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम डेली इस तरह से अच्छे भक्तों के साथ एसोसिएशन में रहेंगे, हमारा चित्त हमेशा भक्ति में लगा रहेगा। अगर हम डेली जो है ऐसे लोगों के साथ रहें कि रोज जो है कि नॉनवेज खा रहा है, रोज जो है कि जो चीज नहीं करना चाहिए वही चीज कर रहा है, तो फर्क पड़ता है, उससे भी फर्क पड़ता है, एसोसिएशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हमें अच्छे एसोसिएशन में हमेशा रहना चाहिए। तो ये सब प्रभु जी आज हमने सीखा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा सतीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हम लोगों ने श्लोक में देखा कि जो व्यक्ति सुख दुख से अटैच नहीं होता है और जो सभी इंद्रियों से परे होता है, इंद्रियों को दूर रखकर अपना काम करता है, इंद्रियों को बस में रख अपना जो काम करता है उसे ही रियल टाइम में स्थित प्रग करते हैं, जो हम देख रहे हैं। तो स्थित प्रग में जो सुख दुख से अटैच उसे करते हैं। लेकिन इस मेटेरियलिस्ट दुनिया में ये श्री कृष्ण की भक्ति के बिना पॉसिबल नहीं है, उनकी भक्ति के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आजकल देख ही रहे हैं कि छोटी सी अनसक्सेस को भी अनसक्सेस होता है ना, तो उसका इल्जाम हम लोग सीधा डायरेक्ट भगवान लगाते हैं कि भगवान मेरे साथ ही सिर्फ क्यों करते हैं। तो हर लोग ये शिकायत है कि भगवान सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, सिर्फ मेरे साथ ही होता है और बाकी सब कितने खुश है, ये है। हम लोग बेविचार की भावना जो बताया गया है सत्संग में वो भी होना लगता है कि हम दूसरे से बहुत ज्यादा जलते हैं, रिलीजन ऑफ इलिजियस जिसे करते हैं। तो दूसरे से करते हैं एक मतलब हम लोग भगवान को कोई भी गलत चीज होता है भगवान दोष देते हैं। फिल्म में भी 3 इडियट फिल्म में भी दिखाया गया था कि भगवान मुझे ये कर दो तो तुम्हें मतलब ये कर दूंगा, इसके बाद मतलब मंदिर जाऊंगा, नॉनवेज नहीं खाऊंगा, इस टाइप का मतलब हम लोग भगवान को ही मतलब घूस देते हैं। तो ये सब एक अधूरे ज्ञान का पहचान है, ये सब एक अधूरा ज्ञान का पहचान है। तो जिसमें फिल्म में एक फिल्म आज के फिल्म में एक चीज और भी दिखाया जाता है कि
कि भगवान तुम जब तक मेरी मनोकामना पूरा नहीं करो तब तक मैं तुम्हारे मंदिर तक मैं पाँव भी नहीं रखूंगा। तो ऐसा भावना को देखने को फिल्म में देखने को मिलता है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ है क्या, हम लोग इतने सुख दुख से अटैच है कि उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। उसके बिना रह ही नहीं सकते हम। और लेकिन जो असली मुनि होते हैं वो इन सब से परे होते हैं, जो इनसे हट कर होते हैं वही वही असली मुनि होते हैं। और ये सब चीज आसान तभी होता है जब हम कृष्ण भक्ति में पूर्ण तरह से आसक्त रहते हैं। हम मतलब अच्छे लोगों के संग करते हैं, नित्य प्रतिदिन भक्ति की सेवा करते हैं, नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, चैंटिंग करते हैं और बिना आसक्त कर रहे हैं, जो सही परिस्थिति हम अनासक्त जब रहते हैं तभी ये चीज हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस मेटलिटी जो डुअलिटी वर्ल्ड है उससे दूर होने के लिए हमें वो ABCD को मार्ग को फॉलो करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन सवेरे या किसी टाइम भगवान की हमेशा पूजा पाठ करते रहना चाहिए। भगवान चैंटिंग करनी चाहिए, एसोसिएशन करना चाहिए, अच्छी गुड डाइट्स फॉलो करना चाहिए। तो भगवान तो आज इस हमारे से इतना ही सीखा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सतीश प्रभु, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी आए हुए भक्त लोगों को दंडवत प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज हम लोगों ने जो पाठ किया जिसका मुख्य विषय था शांति पड़ी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इंद्रियों के बस में रहता है वो इंद्रियोतीत हो जाता है, उसका गुलाम हो जाता है। हम लोग का इंद्रिय बहुत चंचल है। चंचल का मेन कारण क्या है? हमारा खान। पहला डाइट। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बात कही, डाइट। हमारा भोजन कैसे हो? आत्मा प्रभु जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो हमारा डाइट कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। तो हमारा मन जो है सात्विक हो। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ महापुरुषों से भी मतलब कॉपी कर लेते हैं। अरे वो तो ऐसा था, वो तो वाइन पीता था, देखो क्या से क्या हो गया, वो तो सिगरेट पीता था। अरे यार तुम क्या इस सब में पड़े हो? डाइट फाइट ये सब कुछ नहीं होता है, समझ गया ना? ये सब कुछ नहीं है। खाओ पियो यश करो, दुनिया 2 दिन का है। लेकिन इसका मन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है हमें तब पता चलता है जब हम उस चीज को खो देते हैं। इस तरह से एक बात है कि महापुरुष लोग हमेशा बताते हैं, देखो जी, संत लोग बताते, देखो जी 5 महापापों से मनुष्यों को हमेशा बचना चाहिए। 5 महापाप क्या है? महापुरुष बताते हैं, लोग बताते हैं 5 महापाप है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार। जो आत्माराम प्रभु जी ने हम लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार। इस महापाप से बचना इस कलयुग में थोड़ा बहुत ही असंभव वाली बात है। कुछ न कुछ हो ही जाता है सभी लोगों से। झूठ बोला चला ही जाता है, हल्का फल्का बेविचार भी हो ही जाता है। तो पाप जो है, ये 5 पाप से जो अपने आप को बचे रहेंगे उनका ध्यान भक्ति में ज़्यादा लगेगा, उसको ध्यान भक्ति में ज़्यादा रहेगा। 5 महापाप जो बताए हैं संत लोगों ने, 5 महापापों में सबसे बड़ा पाप हो जाता है झूठ। कुछ झूठ ऐसा होता है जो न चाह के भी बोलना पड़ जाता है। जैसे हम बिजनेस करते हैं, उसमें अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैं जीविका के लिए करता हूँ। अब कुछ झूठ बोलना पड़ जाता है।
तो वो झूठ न चाह के भी हो जाता है। नशा न चाह के भी नशा कुछ कुछ द्वारा जैसे हम लोगों का हो जाता है कि चलो भाई ये देखो सी में कोई ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर। Hare Krishna. I think our Ven Prabhu left. Okay. So some issue, maybe technical problem. So Kundan, Hare Krishna. Continue. हरे कृष्णा सर, थैंक यू सर। सर ने ऑलरेडी सारा कुछ एक्सप्लेन किया। आज के परपट में श्रीला प्रभुपाद ने भी काफी अच्छे से बताया कि एक्चुअल मीनिंग जो समाधि का है वो क्या है। तो वो चीज आज हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग अपना माइंड अगर हम लोग फिक्स करते हैं कृष्णा कॉन्शियस में, तो वो एक्चुअल मीनिंग होता है समाधि का। और एंड यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हम लोग जो भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं गुड या इविल, तो हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में रहते हैं तो हम लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। और ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि जो स्थिति धीर जो मुनि होते हैं वो हमेशा जो है कृष्णा कॉन्शियस में रहते हैं। और जो ड्यूलिटी होता है जो लाइफ का, जैसे हैप्पीनेस होता है या फिर सैडनेस होता है, लाइफ में दुख आता है, फियर होता है, तो ये सब चीजें जो है उससे वो परे होते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। और अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। एंड ऑलरेडी सर ने भी बताया है एक स्टोरी में, जिसमें फिर से मे भी सर रिपीट करेंगे, जिसमें एक मंत्री जो होता है वो हमेशा जो है वो कुछ भी होता है तो उसपे भगवान का मर्सी बोलता है कि भगवान लॉर्ड कृष्णा का मर्सी है। इस वजह से ही जो राजा होता है, किंग होता है, जो है उसका जान बच पाता है। अदरवाइज वो भले उस दिन वो चढ़ जाता। तो वो अच्छे से सर एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें बहुत अच्छे से कृष्णा मर्सी के पे स्टोरी है जिसपे भगवान का मर्सी होता है। भगवान इतना परफेक्ट चीज करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चलती। और ये चीज ये आत्माराम प्रभु जी आज बताए कि जो कम रिसोर्सेज के साथ जो श्रीला प्रभुपाद जो है वो पूरे प्रीच किए, जितने भी पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड लॉर्ड कृष्णा हरे कृष्णा महामंत्र का। और उनके वजह से ही हम लोग जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लोटस फीट को हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। तो हम लोग को भी जैसा सर ने भी बताया था कि हम लोग जो है वो इस जो मटेरियल वर्ल्ड है उस एक एग्जांपल के थ्रू कि हम लोग एक बीच नदी में है और हम लोग कम से कम रिसोर्स लेके हम लोग को किनारा, मतलब जो है ओल्ड एज जो है वो उसको किनारा बोला गया है, जिसमें हम लोग कम से कम रिसोर्स यूज करके जो है वो उस किनारे पे हम लोग पहुंचे और भगवान के हमेशा लोटस फीट पे रहें। और भगवान को जो है अर्थ विग्रह फॉर्म जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग अपने घर पे रखें, ताकि हम लोग का जो निगेटिविटी जो होता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें जो मॉर्निंग जो स्टार्ट होता है तो वो प्रेयर ये सब हम लोग करें, तभी हम लोग जो है जो एक्चुअल मीनिंग जो है जो हम लोग आज पढ़े समाधि का, तो हम लोग वो हम लोग समझ पाएंगे। तो यही चीज़ आज देखें सर। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Kundan. Beautiful. Hare Krishna, Dhananjay. हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा आत्माराम प्रभु, सतीश प्रभु, कुंदन प्रभु। तो वेरी नाइस डिस्कशन। एंड आज हम लोग पढ़े हैं कि श्री भगवान बता रहा है एक कृष्ण भक्त का एक चिंतन कैसे होता है, और हाउ एक कृष्ण भक्त जिसको टेक्निकली कहा जाता है कि समाधि, हम लोग आज वही पढ़े और देख रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त है they always are engaged and desire to service their sincere devotional service to the lotus feet of Krishna। उनके पास ना कोई आनंद ना कोई दुख रहता है। all are things are they consider in equally। जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया, there is no difference in summer or winter or rainy season or either day or night। every situation is equal। एक कृष्ण भक्त जैसे एक हैप्पीनेस में जैसे रहते हैं, जब उनके पास दुख आता है, कष्ट आता है, वो भी ऐसे ही रहते हैं। बिकॉज दोज आर इन कृष्ण कॉन्शसनेस, उनके पास कष्ट भी एक तरफ आनंद ही होता है। जब कृष्ण भक्त को कष्ट देता है, कष्ट मिलता है,
वो सोचते हैं कि भगवान और भी पास लेके जाने के लिए ये मुझे कष्ट दिया, and they glorify to Krishna that. And we can also see that whenever some difficulties also come in our life, we are more and more prone to the Bhagavan like Krishna. So it's always gives more closer to the Krishna. तो जो कृष्ण भक्त है उनके पास कष्ट भी एक प्रकारी आनंद ही होता है। और हम लोग आज देखिए भगवान बता रहे हैं एंड श्रील प्रभुपाद मेंशन किए हैं कि जो कृष्ण भक्त होता है वो सारे मटेरियल कंटामिनेशन से मुक्त है। His or her main aims or mission is to always pleasure the senses of the Krishna. They are always try to engage more and more sincere devotional service to the Krishna. This is called the technically samadhi. तो आज सर ने बहुत अच्छा से डिस्कस किए और हम लोग यही सीख सकते हैं इसी पर्पट से। Always we should follow the path of the Shuddha Bhakta or those who are in sincere Krishna consciousness. So because life is the full of miseries, full of the difficulties and sufferings. So whatever we gain, that is the temporal happiness. It cannot give us the pleasure. So it may give this some happiness, but pleasure is something different. So pleasure always we can get by the mercy of the devotees and by doing the sincere devotional service to the Krishna. So always we should engage our body and mind to the fulfill the senses of the Krishnas, and that means the sincere devotional service to the Krishna. Because whatever we do, if we do a little for the Krishna, Krishna gave a lot. So Hare Krishna, sir. That we learn. I am learned. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सर हम लोग कर रहे हैं कि जब अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस में रहता है उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो हम लोग जो है ये पढ़ रहे थे। और कल भी जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 फोल्ड मिजरीज के बारे में जो है डिस्कस किया था, और भी हम लोगों ने कल बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी और आज भी जो है उसका कंटिन्यूएशन चल रहा है। और यहाँ पे जो है भगवान जो है बता रहे हैं, प्रभुपाद जो है हमको ये बता रहे हैं कि जब भी कोई भी मनुष्य जो है जब इस संसार के अंदर जब उसका जन्म होता है तो जो संसार के जो 3 मोड्स है, जो नेचर के 3 मोड्स है, वो जो है उसको जो है जकड़ना जो है वो शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ के जो इस संसार के अंदर जो है वो पूरा ड्युअलिटी जो है यहाँ पे मौजूद रहती है। यहाँ पे गुड है तो इविल भी है, सुख है तो दुख भी है। तो इस तरह से जो है ड्युअलिटी भी रहता है। और जो भी व्यक्ति इन ड्युअलिटी से जो है वो ऊपर उठ के जो है और जो भी अपने जो मन को जो है जो स्थित करता है भगवान के सेवा के अंदर, तो उसको जो है हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है उसको जो है हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है किस तरह से जो है हम लोग कृष्ण कॉन्शियस बन सकते हैं उसके बारे में भी जो है सर ने बहुत अच्छे से बताया। तो उसके लिए जो है हम लोग को प्रयास ये करना चाहिए कि जो पूर्ण रूप से पहले से ही कृष्ण कॉन्शियस है, जैसे कि प्रभुपाद है, तो उनके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, हमको प्रयास करना चाहिए कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे हम लोग चले। जैसे कि सर हमेशा एक्सरसाइज करते हैं कि चैंटिंग और बोलना और सुनना ये जो है हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बोले क्या हम, तो बोलना है हमको जो है हमको प्रयास करना चाहिए कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करें, और श्रवण मतलब सुनना कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भगवत गीता और भी जो जितनी अच्छे बुक्स हैं वो पढ़े और सुने। तो इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त लोग हैं, उनका जो सानिध्य है उसको प्राप्त करना जो है हम लोग के लिए जो है वो अति आवश्यक है।
तो फिर जब तक उनकी कृपा नहीं रहेगी तब तक जो है हम लोग के ऊपर भगवान की भी जो है वो कृपा जो है वो नहीं होगी। तो हम लोग को जो है यही प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो है कृष्ण कॉन्शियस की जो है वो प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ में जो गुरुजन है, जो भक्तजन है, जो साधु जन है, उनका जो है सानिध्य जो है हम लोग प्राप्त करने का जो है प्रयास करें। तो आज ये डिस्कस किए थे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। रोहित। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जब अर्जुन जी पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है तो उनका एक्टिविटी क्या होगा, या फिर हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो फिर कृष्ण भगवान को बहुत सारे चीज बताते हैं कि वो अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो उनका इस तरह का रहेगा, नेचर कैसा रहेगा उस इंसान का। उसी में बताते हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी है, सुख दुख और अच्छा खराब, इन सब से उनको उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो काफ़ी खुश भी रहेंगे तो उनका मतलब जो नेचर है वो नॉर्मल ही रहेगा, काफ़ी दुख भी रहेंगे तो उनको फेस पे ऐसे पता नहीं चलेगा कि आदमी ज़्यादा दुखी में है या फिर कुछ अच्छा खराब होगा। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना मतलब कि जो उनकी लाइफ में चल रहा है अच्छा खराब, तो उनका जो भी है खुद से मतलब अपने आप पे वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है कि उनके कारण हमको ये हो गया या फिर वो हो गया। और ये भी मटेरियल वर्ल्ड में ये भी सिखाते हैं कि हम लोग जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं उसको अपना इंद्रियों पे कैसे काबू करना चाहिए। और इसमें सर 4 मतलब बेसिक प्रिंसिपल दे दे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और फिर प्रभुपाद हम जब प्रचार प्रसार कर रहे थे उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल जो दिया था जो कि हम लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा भी है। तो और प्रभुपाद जो मतलब यही 4 बेसिक प्रिंसिपल को हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस में को फॉलो करने का जो रास्ता दिए हैं यही रास्ता दिए हैं। और जैसे जिसमें कि एसोसिएशन है और बुक रीडिंग है और चैंटिंग है और डाइटिंग है। उसके बाद प्रभुपाद का जो है कि लाइफ में भी बहुत सारा दुख हुआ। हम लोग आज ये भी सीखें कि अगर हम लोगों के लाइफ में दुख रहता है तो हम लोग उसको इग्नोर करके हम लोगों का जो कर्म है, जो हम लोगों का कर्म है उसको हम लोगों को करते रहना चाहिए। और एक जो हम लोग का जो कर्म का जो रिजल्ट आना चाहिए वो जरूर आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कृष्णा प्रभुपाद जब उनका जो लक्ष्य था कि सारे संसार में कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना, तो वो उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मतलब मास नंबर में कृष्णा भक्त हम लोगों को हर जगह मिलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कि जिसका ये मेंबरशिप है जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का है। इनका लगभग सारे कंट्री में हम लोग अब देख रहे हैं कि कल भी मैंने गूगल पे देखा था, वो ये सारे जगह पे लगभग अप्रोक्स सारी कंट्री में इसका वो सोसाइटी बना हुआ है। इससे हम लोग यही देखते हैं कि प्रभुपाद जो मेहनत किए थे वो अपने मतलब खराब तबीयत में भी वो जल रास्ते के द्वारा गए थे, उनमें उनको हार्ट अटैक भी आया था, फिर भी वो हार नहीं माने और अपना जो उनका कर्तव्य था वो करते रहे। इसे यही सीख मिला कि हम लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। आज हम लोग ने देखा कि हमारी जो जिंदगी है तो बीच भवसागर में पार में हम लोग फंसे हुए हैं। वहां से निकलेंगे कैसे? हम लोग के बीच बाजार में नैया फंसी हुई है। जब तक हम लोग कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कृष्णा चैंटिंग नहीं करेंगे, हम लोग बीच मझधार में ही तड़प तड़प के मरेंगे, घुट घुट के मरेंगे।
जब तक हम लोग कृष्ण भगवान की भक्ति चैंटिंग जाप न करेंगे हम लोग का जीवन उदार नहीं होगा। और हम लोग का जो डाइट है मीट मांस मछली ये सब नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग हैं जैसे पार्टी फंक्शन होगा तो उसके बिना ही मतलब कितना कुछ भी खिला दो, अच्छा पाचरंगा कुछ भी खिला दो, मेवाड़ हुआ कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन उसके बिना न मिलेगा तो कि पार्टी ये सब कुछ ही हुआ, ये सब तो कुछ होवे न किया है। दारू चाहिए तो मीट मछली चाहिए, उसके बिना मतलब अधूरा है। कितना भी अच्छा चीज खिला दिया जाए ताकि ना वो सब कुछ न है। जितना स्मोकिंग है ये वो कुछ भी सब सब गलत है। सब मन को विचलित करता है। जैसा हम लोग का भोजन रहता है उस अनुसार हम लोग का मन भी ढलता है। और हम लोग को ये सब चीजों से वंचित रहना चाहिए, कृष्ण भगवान की भक्ति करना चाहिए। जय श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सोनू, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। Hare Krishna, Sono. Thank you, very beautiful. Thank you very much. We'll stop here.